Hello, dear students. Welcome to the class today. So, children, we are carrying on. We have right now completed the second chapter, third chapter. I'm sorry, second chapter in economics. So, after completing that chapter, now the chapter that we need to concentrate on and that we need to start is the third chapter. We have completed two chapters in almost all the books. Four books are there. Social science, as you know, is divided into four parts. So history, political science, geography and economics. All these books that we have been doing, we have completed good amount of work. Now let's start with the third chapter in geography. Dear students, one of the very important chapters. And let me make one thing very clear. Class 9th geography, whatever you are studying, this is not important for your class 9th. This is important for your whole future. Yes, children, believe me. I am talking out of my experience. Whatever you will be studying in class 9th geography, the same questions are put up for the general awareness paper in general awareness paper for your IS examinations, PCS examinations, the physical features of India, everything you need to know about India. So India's related questions are very frequently asked in each and every competitive examinations. So the competitive examinations are important. Each one of you have to face some or the other competition. For that purpose, we need to do this chapter. Now let's start this chapter. It is talking about drainage. Third chapter, drainage. हम किस drainage की बात कर रहे हैं? Drain तो मेरे को जहाँ तक पता है it is नाली. Yes. Simple drains are those places, those areas जहाँ से कि पानी निकल के बह के और जाके इट गेट्स मिक्सड अप समवेयर एल्स. एक छोटी छोटी नदियाँ होती हैं. छोटी नदी जाके बड़ी समुद्र में मिल जाती है. येस, दैट्स द प्रोसेस माय डियर स्टूडेंट्स. जस्ट सी हियर इट इज़ मेंशन्ड द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. किसी भी एरिया में, और आपके लिए तो ये समझना बहुत ज़रूरी है. यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस रिवर सिस्टम बिकॉज यू आर लिविंग इन एन एरिया वेयर वन ऑफ द largest river, one of the largest rivers of the world and the largest river of the country you are staying in the in the vicinity nearby to this system, river system. So river system, a physical map जब हम देखेंगे, अभी just now we will be seeing, we will be noticing that small streams are there. छोटी छोटी नदियाँ हैं, बहुत सारी छोटी नदियाँ. अभी I'll show you children, I'll be showing you the map work just now. Very small streams are there and different directions they are coming together. They come together from various directions and main river में जाके जुड़ जाते हैं. These small streams, these small rivers get attached to the main river. And this main river is draining into a large water body. बहुत ही बड़ा सा एक वाटर सिस्टम होता है, वाटर बॉडी होता है, जैसे कि लेक है, सी है, ओशन है, उसमें जाके ये नदियाँ मिलती हैं. छोटी नदी बड़ी नदी में जाती है and then this big river further flows into the sea or ocean. तो this area, एक रिवर सिस्टम से जो एरिया ड्रेन हो रहा है, मतलब वेयर द रिवर इज़ रनिंग, वेयर द रिवर इज़ फ्लोइंग, सिंगल रिवर सिस्टम इज़ देयर, दिस इज़ कॉल्ड एज ड्रेनेज बेसिन. क्या कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन. बेसिन, हाँ, बेसिन जहाँ से सारा पानी निकल के जाके नाली में मिल जाता है. बेसिन इज़ बेसिन. ओके, एंड ऊपर से सारा आके इट गोज इनटू द लोअर एरिया फ्रॉम द अपर एरिया. द थिंग्स, द रिवर्स दैट आर फ्लोइंग, द वाटर दैट इज फ्लोइंग, इट इज गोइंग एंड मिक्सिंग इन टू द लोअर एरिया. अब जब हम देखते हैं, व्हेन वी सी द मैप, नेक्स्ट पेज में मैप इज देयर, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अबाउट दिस मैप.
Single river is flowing, it is called as the drainage basin. We will find and any indicate that any elevated area means थोड़ा सा बढ़ा हुआ, थोड़ा सा चढ़ा हुआ, जैसे कि माउंटेन है या फिर अपलैंड है, देर इज़ अ माउंटेनियस एरिया और देर इज़ an area which is situated on a height, separates two drainage basins. ठीक है, ये जो the water that is draining, the water that is flowing, it is separating into two parts. दो तरीके से ये जो अपलैंड है, देयर इज, दिस इज नोन एज द वाटर डिवाइड व्हेन इन द टू पार्ट्स देयर इज द डिवीजन ऑफ दिस वाटर. अब ये देखो, दीज डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड. एंड these you have to make in your notebook. आपको अपने नोटबुक में बनाना है. ओके, नोटबुक में जो आप बनाएंगे, प्लीज़ अंडरस्टैंड these are some of the important features that you need to understand. वाटर डिवाइड, दो तरीके की नदियाँ बह रही हैं, स्ट्रीम ए, स्ट्रीम बी, एंड बीच में जो है दैट इज़ व्हाट इज़ द वाटर डिवाइड. पानी, ये जो एलिवेटेड एरिया है ना, जो थोड़ा सा ऊंचा एरिया है, बिकॉज इट इज़ एलिवेटेड, एलिवेटेड मीन्स थोड़ा सा हाइट पे है. ठीक है, तो हाइट हैज सेपरेटेड दीज टू स्ट्रीम्स, टू वाटर बॉडीज. दिस इज कॉल्ड एज वाटर डिवाइड. पानी जो है वो दो तरफ डिवाइड हो गया है बिकॉज ऑफ दिस एलिवेटेड पोजिशन. ओके, अब ये था, दिस वॉज अबाउट द वाटर डिवाइड. नाउ लेट्स सी द ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया. इंडिया में व्हाट ड्रेनेज सिस्टम इज देयर, हाउ डज द रिवर्स ड्रेन इन इंडिया. ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में क्या है, मेनली इट इज़ कंट्रोल्ड बाय broad relief feature of subcontinent. This area that is there, उसमें relief feature is the physical feature of the land. कहीं पहाड़ है, कहीं somewhere it is mountain, plateau, valley, V-shaped valley. Okay, then you have the drainage area, we have the plain area. अब जैसे कि we are staying in वाराणसी, यहाँ पे हम जो रह रहे हैं, दिस इज अ प्लेन एरिया. आपको माउंटेन्स नजर आएंगे यहाँ पे. नो, यू कैन हार्डली फाइंड माउंटेन, यू कैन नॉट फाइंड माउंटेन्स हियर. एक्चुअली देर आर नो माउंटेनियस रीजन्स. सो इंडियन रिवर जो है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेजर रिवर्स. एक तो हो गया हिमालयन रिवर, जितनी नदियाँ हिमालय से निकल रही हैं उसका एक अलग सिस्टम है. एंड देन द पेनिनसुलर रिवर्स. पेनिनसुलर रिवर्स मीन साउथ में ओशन से घिरा हुआ है, लेकिन बीच बीच में देयर आर सम रिवर्स विच आर ओरिजिनेटिंग एंड ड्रेनिंग इन दोज एरियाज, और उसके वजह से लोगों को पानी मिल रहा है. दे आर कंटिन्यूसली गेटिंग वाटर एंड द लाइफ इज सस्टेनिंग. जिंदगी जो है वो पानी पे ही चल रही है. तो पानी कहाँ से आ रहा है, एक तो हिमालयन रिवर से पानी मिल रहा है हम लोगों को, एंड दूसरा है साउथ के जो पेनिनसुलर रीजन है वहाँ से कुछ पानी मिल रहा है. ओके, नाउ इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया के दो जगह से इट इज कमिंग आउट. हिमालयन रिवर इज देयर एंड पेनिनसुलर रिवर इज देयर. There is vast difference between the Himalayan rivers and the peninsular rivers. Both are very different from each other. Okay? Perennial हैं. Himalayan rivers are perennial. Most of the Himalayan rivers जो हैं perennial हैं. Yes, meaning is given here. Meaning कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है. It is flowing all through the year, throughout the year. Got it? ये जो रिवर्स हैं, these are receiving water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains.
बड़े बड़े माउंटेन पीक्स हैं, स्नो एरिया इज़ देयर, वहाँ से स्नो पिघल के आके रिवर्स में मिलता है, ठंडा ठंडा पानी वहाँ से शुरू होता है। उसके बाद देयर इज़ अ फेज ऑफ पोल्यूटेड वाटर, पॉल्यूशन, सारा कूड़ा लोग जो है डंप करते हैं नदियों में, और उसके बाद की कहानी आपको पता ही है। So much of initiative has been taken by the Indian government to clean the rivers. नदियों का साफ होना बहुत ज़रूरी है, with a special reference to industrial waste, इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, प्लस ऑल द ड्रेन, जितनी भी हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है, इट इज़ गोइंग एंड ड्रेनिंग इन द रिवर्स। वेरी सॉरी स्टेट, सबसे ज़्यादा ख़राब यही चीज़ है। एंड द वाटर इज़ देयर थ्रू आउट द ईयर, लेकिन दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन। ठीक है, बारिश का तो पानी है ही ये। अब देखो पानी, बारिश हो रही है तो देयर वुड बी अ राइज इन द वाटर लेवल ऑफ द रिवर्स, रिवर्स का पानी जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सो 2 मेजर हिमालयन रिवर्स आर हियर, यहाँ पे 2 मेजर हिमालयन नदियाँ हैं, एक तो है इंडस एंड अदर इज ब्रह्मपुत्र। माउंटेन रेंज, जो हिमालय का जो माउंटेन रेंज है उसके नॉर्थ में इट इज़ ओरिजिनेटिंग, एंड माउंटेन्स के बीच में से इट इज़ फ्लोइंग मेकिंग गॉर्जेस, गॉर्ज बन रहा है इस एरिया में, एंड दे हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम द सोर्स टू द सी। जहाँ से नदी निकल रही है, लॉन्ग कोर्स, बड़ा लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। The rivers that are originating in the mountainous region, they are traveling a very vast distance to reach to the sea. इसके बीच में lot of pollution, lot of problems, lot of religious values, हर पूजा भी होती है, गंदगी भी फैलाते हैं। The rivers see all kind of activities happening in between. पहाड़ को काट के बीच में से जब नदियाँ बह रही हैं, ठीक है, देन इट इज़ फॉर्मिंग, द माउंटेन्स आर मेकिंग गॉर्जेस। ये देखिए गॉर्ज, हियर यू कैन सी, दोनों तरफ माउंटेन है, बीच में से नदी बह रही है। द रिवर इज़ फ्लोइंग हियर एंड हियर वी हैव द माउंटेन्स। ओके, अब देखो, अब व्हेन द रिवर्स आर फ्लोइंग, ऑफ कोर्स द रिवर्स आर फ्लोइंग वेरी फास्ट, these rivers are performing intense erosional activity. They are carrying the sand and the silt with it in their upper course and carry huge load of silt and sand. बहुत सारा बालू एंड बहुत सारी मिट्टी अपने साथ लेके चलते हैं ये रिवर्स। एंड इन द मिडल, बीच में, मिडल एंड द लोअर कोर्स में, these rivers form meanders, oxbow lakes and many other depositional features in their floodplains. अब आप ये देखिए, intense erosional activities there in their upper course and काफ़ी सारा huge loads of silt and sand is there in the middle and the lower course. ये जो रिवर्स हैं, दीज आर फॉर्मिंग मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मेनी अदर डिपोजिशन। देखो इरोजन, पहले तो क्या, पानी बह रहा है तो अपने साथ दे विल बी कैरिंग ऑल द मड एंड सिल्ट एंड क्ले, जो भी रास्ते में उनको मिल रहा है, द रिवर विल कैरी इट। लेकिन व्हेन इट इज़ फ्लोइंग फास्ट, व्हेन द रिवर इज़ फ्लोइंग फास्ट, देन इट इज़ इरोडिंग द लैंड, अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके चलते हैं। लेकिन जहाँ पे इट इज़ गोइंग स्लो, तो वो सारा डिपॉजिट करना पड़ता है ना, जब नदी में, जब पानी में फ्लो ही नहीं है। सो हाउ विल द वाटर बीइंग कैरिड, किस तरह से ये पानी को वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नहीं लेके जा सकते। तो मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स आर देयर इन द फ्लड प्लेन्स। दे हैव वेरी वेल डेवलप्ड डेल्टास। Deltas you understand, a place where the rivers are meeting the sea, वहाँ पे एक ट्राइंगुलर सा लैंडफॉर्म बन जाता है,
where the rivers are dividing into many parts. It is there are a lot of small streams coming out of the main river, then it is forming a delta. ये देखिए, अब आप देखिए नदी ने बहना शुरू किया, नदी ने बहना शुरू किया. It is flowing and flowing and flowing. देन ये मिडिल कोर्स में यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे वी आर फॉर्मिंग द मियांडर. मियांडर फॉर्म हो गया. अरे रास्ते में थोड़ा सा ऊंचा सा ये इलाका आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि द रिवर इज़ चेंजिंग इट्स कोर्स एंड स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड. कुछ दिन के बाद क्या होता है, यहाँ पे मड एंड सिल्ट जमा हो जाता है एंड ये एक छोटा सा लेक बन जाता है विच इज़ कॉल्ड एज द ऑक्सबो लेक. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सबो. हाँ, बैल का जो ऊपर का हम्प होता है, यस, दैट इज़ कॉल्ड एज द ऑक्सबो, और वो एक लेक फॉर्म हो जाता है विच इज़ टर्म्ड एज द ऑक्सबो लेक. ओके. एंड देन देयर इज़ द लोअर कोर्स, जहाँ पे कि रिवर का मूवमेंट गोज वेरी स्लो. नदी के पानी का बहाव बहुत कम हो जाता है. When it is going very slow, जब बहाव इतना कम हो गया, तब क्या बन जाता है, then it is forming as the delta. ये आप देख लीजिए, यहाँ पे ये डेल्टा फॉर्म हो गया है. ओके. अगेन यू हैव टू मेक दिस डायग्राम. These कहाँ, जहाँ से the river is coming out, the source of the river is there, upper course is there, middle course is there, meanders are forming, Oxbow Lake is there, and then there is the lower course. Okay. अब आप ये देखिए अपर कोर्स, ये आपको यू हैव टू मेक दिस डायग्राम इन योर नोटबुक्स. meanders, Oxbow Lake and many other depositional features are there in the flood plains. फ्लड प्लेन्स में ये जो डिपॉजिट कर रहे हैं, डिपोजिशनल फीचर्स आर देयर इन दीज फ्लड प्लेन्स. गॉट इट? नाउ सबसे पहले जो हम रिवर सिस्टम वी विल बी अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ द हिमालयन रिवर. हिमालय से जो नदियाँ बाहर आ रही हैं, द रिवर्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ द हिमालयाज, major Himalayan rivers. First you have to remember the name, my dear students. It is the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. Yeah, of course, most common rivers, lot of importance in the Indian context. ये नदियाँ ही नहीं हैं, it is the lifeline of the Indian people. लोगों की ज़िंदगी चल रही है इससे. Okay. And these rivers are long, काफ़ी बड़े हैं, and are joined by many large and important tributaries. Tributaries are, जैसे मेन रिवर गंगा इज़ फ्लोइंग और बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आती हैं और गंगा में मिल जाती हैं. That these are the tributaries joined by many large and important tributaries. बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं which come and join the main river. तो ये जो रिवर है along with its tributaries it's flowing, it is called as the river system. इसमें आके जो रिवर्स मिल रहे हैं, a river along with its tributaries, it is called as a, it may be called as a river system. It is called as a river system. अब इंडस रिवर, सबसे पहले हम जिस रिवर के बारे में समझना शुरू करेंगे, the first river that we are talking about is the Indus river system. कहाँ पे? It is from where it is rising. It starts from which place? Indus river is rising in Tibet. मानसरोवर के पास से ये सिंधु नदी, इसको हिंदी में जब हम कहते हैं ना, it is called as सिंधु नदी, Indus river. And it starts flowing to the west. It enters India. इंडिया में in the लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये नदी लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है. एंड इट इज़ फॉर्मिंग अ पिक्चरस्क गॉर्ज इन दिस पार्ट. बड़ा ही ऊपर दोनों तरफ पहाड़ हैं, चारों तरफ पहाड़ इनफैक्ट हैं, और बीच में से ये नदी बहती है. इतना खूबसूरत लगता है ना देखने में. येस, आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू इन दिस मैनर ओनली चिल्ड्रन.
because it is very clearly mentioned here, it is forming a picturesque gorge in this part, जहाँ पे वेयर इट इज़ फ्लोइंग बड़ा ही खूबसूरत सा एक पिक्चर बनता है. And lot of small rivers are there which are coming and joining the Indus River. इंडस रिवर सिस्टम को बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ ज्वाइन करती हैं. ट्रिब्यूटरीज आर देयर एंड दीज आर ज़ैस्कर, नूब्रा, श्योक एंड हुंजा. चिल्ड्रन, दिस इज़ जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज की बात है कि नेम सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ, yes, of course, important tributaries of river Indus, Zaskar, Nubra, Shyok and Hunza. They join it in the Kashmir region. कश्मीर रीजन में आके ये इसको ज्वाइन करते हैं. अब इंडस कहाँ कहाँ पे फ्लो कर रहे हैं? इंडस इज फ्लोइंग थ्रू बाल्टिस्तान, गिलगिट एंड इमर्जेंस फ्रॉम माउंटेन्स एट अटॉक. ये पाकिस्तान में है. दिस इज देयर इन पाकिस्तान. ठीक है, बाल्टिस्तान, गिलगिट एंड माउंटेन्स है. अटॉक में देयर आर माउंटेन्स, वहाँ पे इट इज़ ओरिजिनेटिंग. उसके बाद मिठान कोट है पाकिस्तान में. ये जो इंडस रिवर का जो सिस्टम है ना, जैसे गंगा तो हमारे यहाँ पे रह गए हैं, लेकिन सिंधु घाटी जो है, सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान में चली गई. वंस अपॉन ए टाइम इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया ओनली. पहले इट वाज इंडिया, इट वाज ऑल इंडिया. नाउ इट इज़ इन पाकिस्तान. तो अब यहाँ पे है सतलज, ब्यास, राबी, चेनाब एंड झेलम. साथ में ऑल दीज ज्वाइन टुगेदर एंड दे एंटर द इंडस नियर मिठान कोट. ये नदियों का नाम आपको, ये जो 5 नदियाँ हैं ना, सतलज, ब्यास, राबी, चेनाब और झेलम, ये 5 नदियों ने मिला के पंजाब बनाया है. पंजाब, 5 in Punjabi you call it as पंज. 5 पानियों ने मिलके 5 water systems have made this. Okay, and it enters Mithankot in Pakistan. इसके बाद Indus moves to the south. It is flowing southwards. ये जो नदियों का नाम है ना children, you have to remember these names. The tributaries and the important rivers that are joining Indus. Reaching the Arabian Sea east of Karachi. और ये नदी जो है साउथ में फ्लो कर रही है. इसका जो डेल्टा फॉर्म हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट इन इंडिया, इट इज़ इन सिचुएटेड इन पाकिस्तान. और ये नदी वहाँ बहते बहते जाके इट इज़ मिक्सिंग इन द अरेबियन सी. इंडस रीजन जो है, इंडस प्लेन जो है, बहुत ही हल्की सी ढलान है. इट हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप. ठीक है, इट इज़ बेंडिंग एंड जेंटल स्लोप है. Look at the length of this river. Again GK, 2900 kilometers. इंडस बेसिन जो है कहाँ पे है? लोकेटेड इन इंडिया, इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है. हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड द रेस्ट इन पाकिस्तान. बाकी पाकिस्तान में है. थोड़ा सा लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इंडिया में है. बाकी जो है सारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उसके बाद बाकी का जो है वो पाकिस्तान में है. चिल्ड्रन, आई एम अगेन टेलिंग यू, इंडस रिवर का जो रिवर सिस्टम है, व्हाट इज़ इट्स ओरिजिन पॉइंट? पहला तो आपको ये याद रखना है. ये मैं आपको दोबारा इसलिए बता रही हूँ ना, आई एम टेलिंग यू फॉर द सेकेंड टाइम बिकॉज दिस इज़ जीके. कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है. You have to never forget it, my dear children. ठीक है, then it is flowing west. It is entering India in the Ladakh district. And एक गॉर्ज बन रहा है. बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ इंडस को ज्वाइन कर रही हैं. That is ज़ास्कर,
नुब्रा, श्योक एंड हुंजा। कश्मीर रीजन में ये सारी नदियां ज्वाइन करती हैं। और उसके बाद you have to know the places where Indus is flowing, all those regions, बाल्टिस्तान, गिलगिट, माउंटेन्स जो हैं, अटॉक पे जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे इट इज़ ओरिजिनेटिंग। इंडिया में 5 रिवर्स इनको ज्वाइन करते हैं, द सतलज, द ब्यास, द रावी, चेनाब एंड झेलम। सारी नदियाँ इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हो रही हैं, सम ऑफ देम आर ओरिजिनेटिंग इन पाकिस्तान, लेकिन मैं उसको इंडिया कहूँगी भाई। अभी पाकिस्तान हुआ है, बट वंस अपॉन ए टाइम इट वाज इंडिया ओनली ना, तो आई विल तो से दैट इट इज़ इंडिया। यहाँ से इट इज़ एंटरिंग इन द नियर बिठानकोट इन पाकिस्तान। इसके बाद इंडस फ्लोज साउथवर्ड्स। उसके बाद पहले तो इट इज़ ज्वाइंड बाय ऑल दीज रिवर्स, जहाँ पे कि पंजाब बन रहा है। द स्टेट पंजाब इज़ फॉर्म बिकॉज ऑफ दीज 5 रिवर्स ज्वाइनिंग इंडस। आधा पंजाब हमारे यहाँ है, आधा पंजाब पाकिस्तान में, जहाँ पे कि यू हैव दिस वाघा बॉर्डर अमृतसर में। हाँ बेटा, यस दैट्स ट्रू, हाफ ऑफ द पंजाब इज़ विद अस, otherwise it was all big Punjab that belonged to India once upon a time. Okay, इसके बाद Indus is flowing southwards reaching Arabian Sea. Indus reached Arabian Sea east of Karachi. कराची के ईस्ट में वहाँ पे Indus is flowing. and इंडस प्लेन जो है ना, उसका बड़ा ही जेंटल सा स्लोप है, मतलब ढलान बहुत ज़्यादा नहीं है, स्लोप बहुत बड़ा नहीं है, देयर इज़ अ स्मॉल स्लोप। एंड टोटल लेंथ जो है इसका इंडस रिवर का, दैट इज़ 2900 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़ द इंडस रिवर। एंड लिटिल ओवर द थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन is Indus जहाँ पे Indus river is originating, from that place India is located in India in the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab and rest of is in the Pakistan. अब देखो यहाँ पे one amazing fact is given, we should know about it, कि Indus Water Treaty was signed in 1960. 1960 में Indus Water Treaty is signed. India can use only 20% of the total water. What an unfortunate thing. 20% of the total water carried by the Indus River system. ये वाटर हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं? वी आर यूजिंग दिस वाटर फॉर इरीगेशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं पंजाब, हरियाणा एंड द साउदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। साउथ में और वेस्ट ऑफ राजस्थान में ये पानी हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रीटी हुई ना, बाकी का पानी पाकिस्तान को चाहिए था। तो वी हैव ऑलवेज बीन शोइंग आवर मैग्नानिमिटी, हम तो हमेशा से अपनी महानता दिखाते आए हैं। ओके, एंड वी गिव इट टू देम। अब आप देखिए, ये गंगा रिवर सिस्टम है। ऑफ कोर्स गंगा इज नोन एज भागीरथी। इट इज़ सेड कि भागीरथ नाम के एक रूलर थे, उनके वजह से गंगा हैज़ कम टू इंडिया। आई मीन इट हैज़ कम डाउन टू इंडिया फ्रॉम द हेवेंस। ऑफ कोर्स गंगा नहीं होती तो हमारा वाटर सिस्टम बिल्कुल नहीं होता। एंड गंगोत्री, वहाँ पानी कहाँ से आ रहा है गंगा में? इट इज़ फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एंड अलकनंदा, वो ज्वाइन करते हैं एट देव प्रयाग, उत्तराखंड में ना अलकनंदा रिवर इज़ फ्लोइंग, इट इज़ ज्वाइनिंग गंगा रिवर एट देव प्रयाग। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, अगेन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम जीके पॉइंट ऑफ व्यू, सो प्लीज़ डू रिमेंबर द नेम। आगे गंगा की कहानी विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू।